یہ کہہ دینا کہ جی ایک بیان آ گیا ہے اور اس بیان کا معنی یہ ہے کہ پی ٹی ایم ٹوٹ گیا ہے اور اس میں اختلاف آ گیا ہے، یہ خواب جو ہے یہ کبھی بھی ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور انشاءاللہ العزیز اعتماد کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، ان کے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیے، جو خارجہ پالیسی ہے اسے اس وقت کی حکومت کمانڈ کرتی ہے۔ ہم ایسے نااہلوں کے حوالے ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ صورتحال میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، ایران اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، چائنا کو سی پیک کے حوالے سے آپ نے بہت دور کر دیا ہے، بہت ناراض کیا ہے، سعودی عرب بہت دور چلا گیا ہے آپ سے، امارات بہت دور چلا گیا ہے آپ سے، ملیشیا آپ کے جہاز روک رہا ہے، برطانیہ پاکستان کو اربوں روپے کے جرمانے وصول کر رہے ہیں آپ کے جی، اور آپ ادا کر رہے ہیں جی۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ اس وقت تنہائی کا شکار ہیں۔ ہم تو یہ بات ضرور کہتے ہیں، اور جو بائیڈن بھی یہ بات سمجھتا ہے کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ پاکستان کی حکومت کو ڈیموکریسی کے معیار پر ایک ڈیموکریٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ رویوں سے اندازہ لگ رہا ہے، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان کی حکومت وہ ہو جو جمہوری معیار پر پوری اترتی ہو، آئین کے تحت ایک منصفانہ الیکشن کے نتیجے میں اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ دنیا کے ساتھ عوام کی نمائندہ بن کر بات کرتی ہے۔ جب دنیا کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے تو پھر آپ تنہائی کی طرف جاتے ہیں، پھر پبلک آپ پہ اعتماد نہیں کرتی۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرے، جس طرح کہ ان کا نعرہ ہے، جس طرح کہ ان کی شناخت ہے، جس طرح کہ اس کا تعارف ہے دنیا کے اندر۔ اور بیت المقدس میں جو امریکہ نے اپنا سفارتخانہ کھولنے کی بات کی ہے، وہ ٹرمپ کا ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے۔ اس میں بھی ان کو حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ اس خطے کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ تسلیم کرنا چاہیے اور وہاں سے اپنا سفارتخانہ واپس کر دینا چاہیے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی خطے میں ایک جمہوری ماحول کو اوپر لے جانے میں ان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، یہ حکومت کہہ رہی کہ سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہم کرا رہے ہیں اوپن اس پر، تو آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا آپ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، یہ بھی بوکھلاہٹ کا ہی علامت ہے۔ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے ان کو، اپنے ووٹ پر ان کو اعتماد نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لسٹ کے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی اور کے لسٹ کے لوگ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہم ان کو کنٹرول کر سکیں گے، ان کا ووٹ کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو اپنا ووٹ بھی نہیں مل سکے گا۔ مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب گزشتہ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ کون کہتا ہے؟ شیخ رشید۔ ان کے ساتھ کتنا ہاتھ ہوا ہے؟ وہ اپنا ان کے ساتھ تو ساری زندگی ہوتا رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ کا عادی ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو اپوزیشن کا مطلب پوری اپوزیشن کا خصوصاً آپ کا نیب کی جو کارروائیاں ہیں اس پہ پہلے دن سے اعتراضات ہیں۔ حضرت نیب سرے سے احتساب کا ادارہ نہیں ہے، ادارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مطابق لوگوں کو پکڑے جا رہے ہیں، لیکن مجھے تضاد سا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے بھی قریبی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، کچھ کو پکڑا ہوا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے آپ کے مطابق، کہ اگر مولانا صاحب کو ہاتھ ڈالا تو ہم پنڈی کا رخ کریں گے، جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جتنی اپوزیشن کے لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ کے رشتہ دار پکڑے جا رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، اس پہ خاموشی ہے، یہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں آپ نے جوڑ صحیح نہیں لگایا۔ نیب کے حوالے سے پنڈی کی بات نہیں ہوئی ہے،
पिंडी की बात और मौजू पे हुई है और नेब की बात और मौजू पे हुई है। नहीं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने कहा था कि हम GHQ का रुख करेंगे। ये और मसला है। PDM के हवाले से एक इजलास जो लाहौर में हुआ था, वो मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से जो हमारे डिमांड्स हैं उस हवाले से पिंडी की बात हुई है और वो फ़ैसला अब तक बरकरार है कि हम कहाँ जाने का फ़ैसला करेंगे। देखिए, मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह दूँ, हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं, और ये जो कुछ मुसीबत इस वक्त कौम पर मुसल्लत है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का एक जुर्म आप कह दें, उसकी ज़िम्मेदारी आप कह दें, वो अपने आप को ज़िम्मेदार तस्लीम करे। हमारा उनसे क्या जंग है? मैं ये तो कह सकता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है, इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ? जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, ये आपके फ़ायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते हैं फ़ौज मुत्तहिद रहे, हम तो कहते हैं इदारे मुस्तहकम रहें। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करना चाहिए। सवाल ये है कि सब कह रहे हैं कि नर जब आपकी पार्टी की दूसरे लोगों पे हाथ डाल रहा है वो एक गलत काम है, लेकिन टारगेट ये है कि अगर सिर्फ मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम नेब का भी गिराव करेंगे। हम हर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझ पर, इसकी वजह यह है कि मुझ पर हमला, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और जलीजान भी हमला जी, जलीजान पर हमला फिर मेरे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इनको ज़रा अपना जोर लगाने दें। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल वहाँ पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं, ये पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं। नेब का जो हरबा था वो एक वक्त तक काम आता रहा इनके, अब वो ठुस हो चुका है। नेब कुछ भी नहीं है और अब नेब खतरे में है। कल जो भी हुकूमत आएगी नेब का खात्मा कर देगी। लिहाजा नेब के अफसरान भी हुदूद में रहें, वो लोगों से ज़ाती दुश्मनी न पैदा करें। हम भी नेब के अफसरों को जानते हैं कि 4-5 सियासी लोगों को तो नुमायाँ कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है और हज़ारों लोगों के खिलाफ केसेस करके उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। खुद इतना बड़ा करप्ट इदारा ये दूसरों के करप्शन का एहतसाब करने का हक रखता है। छोड़ो, जाएं अपने हवाले से सोचें।
परवेज खटक ने भी कहा था कि बीआरटी में अगर मुझ पर करप्शन साबित गोली मार दे। करप्शन जो है करप्शन साबित नहीं है, बीआरटी खुद करप्शन है। साबित कर रहे हैं क्या माना है? मौलाना साहब ये बताएं सेनेट इंतखाबात के बाद अगर जो परवेज खटक साहब की सेहत खुद इस बात की गवाही है जो बीआरटी का ऑर्डर हुआ है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब करेंगे? क्योंकि उनकी कोई भी नुमाइंदा आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो पहले यही कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि पहले जो है पीडीएम ने फैसला किया था कि इस्तीफे देंगे, इस्तीफे भी नहीं आए तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। तो चंद दिन उनको खुश होने दें यार, कुछ बयान करने दें उनको। इस तरह चलता रहता है छोटी मोटी बातें जी। जब हम किसी बात में कोई आगे पीछे हो जाते हैं, कोई तारीख तब्दील कर लेते हैं, कोई हिकमत अमली, तो वो समझते हैं कि देखो वो नाकाम हो गए हैं उनके पास। तो ये चंद दिन उनको भी खुश होने दें यार, पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी आकर। मौलाना साहब आपने खुफिया मुलाकातों की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मरकजी रहनुमा है वफाकी उसमें बैठे हुए हैं, वो बाकायदा तौर पे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम खुद भी वहाँ पर अपने दोस्त रखते हैं, उनसे हमारी भी मुलाकातें होती हैं। तो क्या उनकी ये खुफिया मुलाकातें नहीं है? खुफिया मुलाकातें हमारी ज़रूरत नहीं है, खुफिया मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम भी उनका पर्दा रखते हैं। फिर ये पीडीएम का तहरीक जब से शुरू हुआ है तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए राब्ते कोशिश की गई आपसे? राब्ते रहे हैं लेकिन हमें आमादा करने में नाकाम रहे हैं जी। हम अपने मौक़े पे कायम हैं, ठीक ठाक कायम हैं जी। हम ऐसे इलेक्शन को भी नहीं मानते और इलेक्शन की इस धांधली का जिम्मेदार भी उनको करार देते हैं। न हमने इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए हैं, न उनमें उनकी जिम्मेदार हैसियत को हमने अब तक उसमें तब्दीली लाए। मौलाना साहब ये बताएं कि जो आपने आज मुतालबा किया है कि इलेक्शन दोबारा से करवाए जाए, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो जमहूरी पार्टियाँ हैं, जो सियासी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, या पूरा जो मुल्क में एक सेटअप है, फाइनेंशियल हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो इस सूरत हाल में क्या इलेक्शन करवाए जाए? इलेक्शन तो हर कीमत पर कराए जाए कि हल ही वही है, या तो फिर बंदूक हल है, वो तो नहीं है। आइन ही हक है उसका। आइन इलेक्शन की बात करता है, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। लिहाजा जब आपका मुल्क डूब रहा है तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मार्शल लॉ आ जाए? तो मार्शल लॉ ने तो और मुल्क को गर्क किया है हमेशा जी, इदारों को तबाह बर्बाद किया है। आज तक जो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और 70 साल से कमज़ोरी को मेंटेन कर रहा है, कमज़ोर वो तो मार्शल लॉ उनको वजह से कर रहा है जी। सियासी लोगों को काम करने दिया जाए, जब काम करने देते हैं तो 3 साल के उनको हटा देते हैं, 1.5 साल के उनको हटा देते हैं, कोई ना कोई केस उनके खिलाफ कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी जमहूरियत फलने फूलने ही नहीं दी जाएगी, फिर शिकायत आप किससे कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनके ऊपर थोपा जाए कि पाकिस्तान जो है कमज़ोर हो रहा है, तो ये इनकी वजह से मुल्क को तोड़ा गया, जिम्मेदार सियासतदान को करार दे दिया गया। आज हम रहमान कमीशन को आप दुनिया के सामने लाएँ, पता चल जाता है कि असल जिम्मेदार कौन है उसका जी। मौलाना साहब, वज़ीर आज़म को डेट दी गई थी 31 जनवरी की इस्तीफे के लिए, तो कल 31 जनवरी है, तो उसके बाद क्या रहा है? तो उसके बाद हम बैठ रहे हैं, बिल्कुल हम बैठ रहे हैं। ये बताएं सेनेट इंतखाबात के बाद अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो ऐसी सूरत में क्या मौक़िफ़ आपका होगा? और दूसरा सवाल ये है, दोनों पर जवाब चाहूँगा कि क्या कबायली इलाकों का जो इंतज़ाम है वो अमली तौर पर वो फैसला जो है वो सूदमंद साबित हो रहा है? 2 बातें आपने की हैं। एक है 18वीं तरमीम का मसला। 18वीं तरमीम सूबों के इख्तियारात में इजाफे का है और सूबों के इख्तियारात में इस इजाफे का वादा सन 1973 के आइन में किया गया था। 10 या 11 साल में उनको इख्तियारात में इजाफे का आइन के ज़रिए वादा किया गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब जब 18वीं तरमीम के ज़रिए से सूबों को इख्तियारात दे दिए गए हैं, अब वापस लेना ये सूबों की एहसास महरूमियत पे और इजाफा है, जो खुदा न करे बगावत की तहरीकों में मुंतकिल ना हो जाए। लिहाजा इस किस्म की चीज़ों को हाथ डालना ये मुल्क को तकसीम करने का सबब बन सकता है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन से गुज़र रहा है, इस किस्म के मसाइल न छेड़े जाएँ। यहाँ पर मुश्किल ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करने की बजाय एक इदारे को मजबूत करने की सोच परवान चढ़ रही है। जब तक हम इस तरजीह को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत बनाने की और कौम को ताकतवर बनाने की नहीं सोचेंगे और सिर्फ एक इदारे को ताकतवर बनाने की सोचेंगे, ये पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जा सकेगा। आपका आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि NFC अवार्ड में जो सूबों का हिस्सा है
उसमें इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। और फिर तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हम समझते हैं कि मुल्क ताकतवर हो। आज फ़ौज को पाकिस्तान के बजट से 11 अरब रुपए मिलने चाहिए थे। आपके मुल्क की मईशत यहाँ तक गिर गई है कि आज उसको 7 अरब रुपए मिल रहे हैं। मेरे दिफाई बजट में क्यों इतनी कमी आ गई है, 50 और 55% की कमी क्यों आ गई है? तो मुल्क की दिफा को कमज़ोर कर दिया गया है, दिफाई ज़रूरतों को कमज़ोर कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें इस हुकूमत के अंदर हो रही हैं और कहाँ तक हम जाना चाहते हैं, कहाँ तक इस मुल्क को डबोना चाहते हैं। तो यही वो चीज़ें होती हैं। आपके पास बहरहाल यूनिट्स हैं, ये पाकिस्तान वफाकी निज़ाम है। अगर यूनिट्स मुतमईन नहीं हैं तो आपने सिर्फ बंदूक के ज़रिए उनको मुतहद रखना है। और जहाँ तक है फाटा का ताल्लुक, देखिए फाटा का इंतज़ाम अभी तक फाटा के अवाम ने तस्लीम नहीं किया है। फाटा के अवाम इंतहाई इज़्तिराब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न पुराना निज़ाम है न नया निज़ाम है, कुछ नहीं समझ रहा था कि हम किस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न वहाँ पटवारी है न वहाँ पुलिस है। और जूँ की तुम फ़ौज वहाँ पर है, अब भी वहाँ पर फ़ौज खड़ी है, फ़ौज निज़ाम को संभाल रही है। तो जब फाटा इंतज़ाम के बावजूद फ़ौज के कब्ज़े में है, दहशतगर्दी अभी भी मुनज़्ज़म है वहाँ पर और उसको ख़त्म नहीं कर सकी, तो फिर झूठे वादे क्यों किए गए हमारे साथ? कौम के सामने झूठ क्यों बोला गया कि हमने दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया है? आज भी रोज़ाना पर टारगेट किलिंग हो रही हैं हर एजेंसी के अंदर। तो एजेंसियों का तस्वुर भी बरकरार है, लोगों का रहन सहन और वो भी उसी तरह पुराने एजेंसियों के तहत हो रहा है। ज़िले का नाम अब भी कोई नहीं जानता, फ़ौज अब भी वहाँ पर बैठी हुई है, कंट्रोल अब भी उसी का है, सिविलियन अथॉरिटी अब भी वहाँ नहीं जा सकी है, सिस्टम भी उनके लिए मौजूद नहीं है। जब सिस्टम ही मौजूद वहाँ नहीं है, इंतज़ाम का लोगों को क्या फ़ायदा हुआ आखिर? तो इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और अदालत में जो लोग गए हैं, मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस मसले को देखना होगा। जी मौलाना साहब, जो हुकूमती तर्जुमान है फॉरेन फंडिंग केस, वो कह रहे हैं कि उल्टा अपोजिशन उसमें फंस चुकी है उस जाल में। ख़ुसूसन आप लोगों की जुमात पे वो किया जा रहा है कि लीबिया और इराक का नाम लिया जा रहा है कि भाई, इस पे आप क्या कहेंगे? वो हो जाएगा, अपनी तो पूरी करो ना, पहले अपना गर्दन छुड़ाओ ना, फिर उसके बाद दूसरे गर्दन की बात करो। हम कहते हैं जो इस वक्त फंडिंग केस है, और दूसरा ये कहना कि जी पब्लिक किया जाए, उसको खुले आम इसकी समाअत की जाए, झूठ बोल रहे हैं। आपकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि इसकी समाअत जो है वो इन कैमरा किया जाए। आपने अभी तक वो पटिशन वापस नहीं ली है। और 23 अकाउंट्स के जो स्टेट बैंक ने दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, अभी तक उसको ओपन नहीं किया जा रहा। और इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम पर पीटीआई का दबाव है। कौन सा खत लिखा है उन्होंने कि हमारा दबाव आपके ऊपर नहीं, आप खोल दें उसको? तो जो कुछ इस बयान देने से पहले की कानूनी पोजीशन थी वो बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं, और सिर्फ बयान के जरिए लोगों में कहना चाहते हैं कि हमने तो ओपन ट्रायल का जो है उस पर आमादगी जाहिर की है। ये झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। सिर्फ एक बयान देकर लोगों में ये प्रचार करने वाली बात है। कोई तब्दीली नहीं आई, पटिशन उसी तरह मौजूद है। और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि इसको सीक्रेट रखना है, और ये भी कि पीटीआई के दबाव पे हम इसको खुफिया रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बरकरार हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो झूठ कौम के सामने न बोला जाए। और ये फंडिंग के उनके गले में फंदा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, हमारा तो सब कुछ आमने सामने हो जाएगा। हम तो इस मुल्क में एहतसाब के गिरदाब में नहीं फंसे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातें ना करो, भूल जाओ इन बातों को। अब तुम अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो, अब हमसे पहले जान छुड़ा लो, फिर बात करो जी। 15 सितंबर को हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान किया है, तो जेयूआई का क्या? मुझे हैरत है इस बात पर कि आम इंतखाबात मुल्क में हुए नहीं हैं। आम इंतखाबात में धांधली हुई है। आम इंतखाबात के नतीजे में गलत हुकूमत मुल्क में मौजूद है, और अदालत कह रही है कि बल्दियाती इंतखाब कराओ। उनको, मेरी राय ये है
कि अदालत को हकीकत पसंदाना अवाम की सोच को समझना चाहिए और उनको इस बात पर सो मोटो करना चाहिए कि अदालत इस इलेक्शन को निल एंड वाइड कर दीजिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।